رات کے کلفٹن کے ایسٹ ہسپتال میں ایک جھنڈے والی گاڑی آ کر رکی۔ ایک خاتون گاڑی میں سے نکلی اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوئی۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ بتاؤ کہاں ہے؟ ان کے رونے اور چلانے سے پورا ہسپتال لرز رہا تھا۔ سب خاموش تھے اور کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ ہاتھ میں قرآن لیے وہ دوڑتی ہوئی ایمرجنسی میں آئی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ایک اسٹریچر کے سامنے رک گئی۔ وقت بھی جیسے وہی تھم گیا۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے سفید چادر ہٹائی اور چہرہ دیکھتے ہی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسٹریچر پر اس بھٹو کی لاش تھی جو بے نظیر دور میں مارا جا چکا تھا۔ پولیس مقابلہ یا سوچی سمجھی سازش؟ اور بے نظیر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی اتنی بے بس کیوں دکھائی دی؟ I was the victim. I was the victim. He was not killed because he was Murtaza Bhutto. My brother was killed. Okay, not your brother. No, not at all. I'm not saying it. I'm not saying it. It was not on your brother. It was the brother of the Prime Minister also. مرتضی کا قتل کن حالات میں ہوا، یہ جاننے کے لیے 90s میں چلتے ہیں۔ مرتضی اپنے گارڈ کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی کی فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، لیکن اس فلائٹ میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جسے دیکھتے ہی مرتضی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جہاز لینڈ کرتے ہی ہر کوئی اپنی منزل کی طرف چل دیا، لیکن مرتضی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس شخص کا کار سے پیچھا کرنے لگے۔ ابھی کار کچھ دور ہی گئی تھی کہ شاہراہ فیصل پر اس کی گاڑی کو اوورٹیک کر کے مرتضی بھٹو نے روک لیا۔ ان کے گارڈز نے اس گاڑی میں سے شخص کو باہر نکالا اور چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ مرتضی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس میں پستول نہیں بلکہ اسطرا تھا، اور انہوں نے سامنے کھڑے شخص کی آدھی مونچھ کاٹ دی اور زور زور سے کہکے لگاتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور چلتے بنے۔ وہ شخص شدید غصے کی حالت میں اپنے گھر پہنچا اور چیف منسٹر کو فون کر کے کھری کھری سنا دی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، مرتضی بھٹو کے بہنوئی آصف علی زرداری تھے۔ سب گواہ ہیں کہ سالے اور بہنوئی کے درمیان کبھی نہیں بنی۔ ہارورڈ سے تعلیم یافتہ مرتضی بھٹو کی پرسنالٹی کسی ٹیررسٹ پرنس سے کم نہیں تھی۔ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے بعد وہ اور ان کے بھائی ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر بے نظیر اور نصرت بھٹو گرفتاری کے بعد بھی ڈٹی رہیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ بے نظیر مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بے نظیر نے سیاست اور مفاہمت کا راستہ اپنایا اور مرتضی نے مزاحمت کا۔ 17 سال ایگزائل میں گزارنے کے بعد مرتضی نے دمشق میں بیٹھے بیٹھے دھماکہ کر دیا۔ یہ اعلان تھا پاکستان میں پیپل پارٹی شہید بھٹو جماعت بنا کر الیکشن لڑنے کا۔ واپسی کی پہلی کوشش ناکام ہوئی اور طیارے کا رخ موڑ دیا گیا۔ دوسری اٹیمپٹ میں انہیں ڈرامائی انداز میں جہاز سے اترتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں پر ان کی والدہ نصرت بھٹو بھی موجود تھی۔ یہ نومبر 1993 کی بات ہے۔ نصرت بھٹو نے تو ایک پولیس آفیسر کو تھپڑ بھی جڑ دیا، لیکن وہ مرتضی کی گرفتاری کو نہ روک پائیں۔ مرتضی دہشت گردی کے کیس میں اندر تھے اور جیل آپے سے باہر۔ ادھر لاڑکانہ میں پولیس نے مرتضی کے حامیوں پر گولیاں برسا دی اور نصرت بھٹو تیش میں آ کر اپنی ہی بیٹی پر برس پڑی۔ اب وہ انہیں بے نظیر کی بجائے مسز زرداری کہنے لگی تھی۔ ان کی حکومت کو نواز شریف اور ضیاء الحق کی حکومت سے ہم ملانے لگی تھی۔ دباؤ بڑھنے پر چند ماہ بعد بے نظیر نے مرتضی کو رہا کر دیا اور مرتضی کا رویہ جیل سے باہر آتے ہی مزید جارحانہ ہو گیا۔ میرے کارکن کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کو تنگ نہ کرو، اس لیے میں وہ عیسائی نہیں ہوں یا تمہارے جیسے ہندو نہیں ہوں کہ ایک طرف سے تھپڑ مارو میں کہوں گا دوسری طرف بھی مار دو۔ کوئی کسی نے ہمارے تھپڑ مارا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے ان کی۔ اور انہی دنوں مرتضی کا ایک کارکن علی محمد ہانگرو جیل میں طبیعت بگڑنے سے مر گیا۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے علی سنارا کی۔ یہ ایک انتہائی دلیر مگر گرم مزاج کا آدمی تھا، بھٹو کا پیروکار اور بے نظیر کا سیکیورٹی افسر تھا۔ مرتضی کے جیل سے آنے کے بعد علی سنارا اس کا رائٹ ہینڈ بن گیا تھا اور اسی بنا پر اب اسے گرفتار کرنا ہر حال میں ضروری ہو گیا تھا۔ مرتضی کی پارا صفت طبیعت کا سبھی کو علم تھا، اس لیے یہ کام بہت ہی ہوشیاری سے ہونا تھا، جس کے لیے انتخاب کیا گیا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ذیشان کاظمی کا۔ کاظمی نے اپنے انفارمرز کے ذریعے سونارا کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی مہینے تو پھر یہ صرف یہ سرچنگ چلتی رہی۔ سرچنگ کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ بھائی وہ بندہ تو 70 کلفٹن سے باہر نہیں آتا۔ ہاں کبھی کبھی وہ کوئی جگہ جو ہے نا کسی دوست یار اس کا چھٹی پہ جا رہا ہو یا اس کا گھر خالی ہو تو وہ اس سے چند دنوں کے لیے گھر لے لیتا ہے۔ تو وہ اپنی وائف تھی اس کی سکینہ نا، تو وہ اپنی وائف کو بلا لیتا تھا، وائف کے ساتھ چند دن گزارتا تھا۔ رات تقریباً 2 سوا 2 کا ٹائم ہوگا۔ جب چھاپا ہوا تو ہوا یہ کہ جس فلیٹ کی اطلاع تھی پولیس غلط فہمی میں اس کے سامنے والے فلیٹ میں گھس گئی۔ اس نے شور سن کے اس نے ٹیلی فون 70 کلفٹن ملا دیا اور مرتضی سے اس کی بات ہوئی۔ اس نے مرتضی کو بتایا کہ کچھ شور شرابی کی آواز آئی ہے، مجھے شک ہے کہ یہ پولیس آ گئی۔
इतने में पुलिस ने इसका दरवाज़ा तोड़ दिया। थाने आकर काजमी ने अपने स्टाइल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बहुत टॉर्चर भी किया गया मगर सोनारा ने कुछ न उगला। हर गुजरते लम्हे के साथ काजमी की परेशानी बढ़ रही थी। उधर सोनारा का फोन डिस्कनेक्ट होते ही मुर्तजा आपे से बाहर हो गए। मुर्तजा ने अपने गार्ड्स को साथ लिया और CIA के हेड ऑफिस पहुंच गए। थानों पर हमला कर साथियों को छुड़ाना तो मुर्तजा का मशहूर मशगला था। यहाँ पर भी मुर्तजा के साथियों ने अंदर घुसते ही पुलिस टीम पर बंदूकें तान दी। शायद तारीख में ये पहली बार था कि जुल्म ढाने वाले पुलिस अफसरान भुट्टो की बंदूक के आगे खामोश थे। पूरे थाने की तलाशी हुई लेकिन सुनारा का कोई पता न चला। जाते जाते मुर्तजा ने धमकी दी कि अगर सुनारा को कुछ हुआ तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अगले दिन मुर्तजा की 42वीं सालगिरह थी जब असेंबली के नजदीक 2 धमाके हुए। नसीरुल्लाह बाबर ने इल्जाम मुर्तजा भुट्टो पर लगाया। इसी मामले को बुनियाद बनाते हुए 70 क्लिफ्टन के बाहर पुलिस की 4 गाड़ियां पार्क हो गई और मुर्तजा भी अपने दोस्तों को ये बात पहले ही बता चुके थे कि वो किसी भी रोज गिरफ्तार हो सकते हैं। नसीरुल्लाह बाबर को बेनजीर के डायरेक्ट ऑर्डर्स थे कि मुर्तजा के गार्ड्स को उस वक्त हिरासत में लिया जाए जब वो अकेले हों, यानी मुर्तजा उनके साथ ना हो, क्योंकि पुलिस को शक था कि मुर्तजा के साथी इंडियन एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। सालगिरह के लिए मुर्तजा भुट्टो घर सजाने में मसरूफ थे लेकिन शहर के हालातों को देखते हुए उन्होंने 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। 2 बजे जब सहाफी पहुंचे तो मुर्तजा भुट्टो अपनी जिंदगी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनसे मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम 5:40 पर मुर्तजा एक प्रोटेस्ट मीटिंग से खिताब करने के लिए निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक और धुआंधार तकरीर कर डाली। ने साबित किया है जो अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद करता है उसे दहशतगर्द कहा जाता है। एक बेगैरत पीपल्स पार्टी मर्द मोहम्मद जरदारी और फर्जंद गटर अब्दुल्ला शाह सुन लो, अगर तुम्हारे में चाहने बेगैरत तो आप गिरफ्तार करो, मैं खड़ा हूं। वहां से वापस निकले तो रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी थी। पुलिस ने मुर्तजा की गाड़ियों को रोक लिया। गाड़ियां रुकते ही मुर्तजा ने शीशा नीचे किया और पुलिस वालों को बोलना शुरू कर दिया कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी देर में गार्ड्स भी अपनी गाड़ियों से उतरे और उनके करीब आ गए। अब पुलिस और गार्ड्स में हाथापाई होना शुरू हो गई। इसी दौरान पहले फायर की आवाज गूंजी। फिर क्या था, पुलिस और गार्ड्स के दरमियान शदीद फायरिंग हुई और पूरा क्लिफ्टन गोलियों की आवाज से लरजने लगा। जब फायरिंग रुकी तो मुर्तजा शदीद जख्मी हालत में थे और उनके 8 साथी मर चुके थे। बिखरी हुई पुलिस दोबारा गाड़ियों के नजदीक आई। 2 पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए। रास्ते में जाता हुआ टैक्सी ड्राइवर गोली लगने से हलाक हो चुका था। एक पुलिस ऑफिसर ने मुर्तजा को गाड़ी से बाहर निकाला और पुलिस मोबाइल में डालकर हॉस्पिटल ले गए। यहाँ एक बात क्लियर करता चलूं कि ये तमाम बातें जो इस वाकया से रिलेटेड हैं या तो ये पुलिस के बयानात हैं या फिर वहां पर बाद में पहुंचने वाले सहाफी और कैमरामैन के बयानात, क्योंकि उस जमाने में CCTV तो होते नहीं थे। बाद में इस वाकया का ट्रिब्यूनल बना तो सहाफियों ने बताया कि जख्मी और लाशें काफी देर तक वहां पड़े रहे और पुलिस इनसे लाइलम रही। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि मुर्तजा 4 गोलियां लगने के बावजूद न सिर्फ होश में थे बल्कि खुद उठकर स्ट्रेचर पर लेटे। अस्पताल में बैठे हुए उनकी तस्वीर कई दिनों तक अखबारात में लगती रही। तारिक रहीम के साथ ऐसा हुआ था कि मुर्तज़ा ने खुद उन्हें मर्डर किया था काबुल में जब तैयार हुआ था। तो इनका क्योंकि मेजर तारिक रहीम पाकिस्तानी हीरो थे पाकिस्तानी कौम के, तो और उनकी जो बॉडी थी वो 55 मिनट तड़पी थी। ये हिडन पॉइंट भी था कि मुर्तज़ा को भी वो तकलीफ़ मिलनी चाहिए कि ये भी 55 मिनट बाद ही अस्पताल पहुँचे। तो इनका सिर्फ काम ये था कि इन्होंने उतने देर तक मुर्तज़ा को सड़क पर पड़े रहने दिया, थोड़ा सा एक भंगड़ा डाला उसके गिर्द और फिर वो 55 मिनट बाद उसको फिर जो है जो बुनियादी नेग्लिजेंस थी वो ये था कि उनको जब गोली लग गई थी जिस जगह पे जो अंदर लेके गए हैं जिस हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर तो खून को रोकने वाली अद्वियात भी नहीं थी। उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी थी। आप वहाँ क्यों नहीं ले गए जिना हॉस्पिटल? आप आगा खान हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? 15-20 मिनट का रास्ता था ना। जिना हॉस्पिटल तो बिल्कुल करीब था। मैं जब अंदर गया तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने जो है वो मुर्तज़ा उस पर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और मैं अंदर गया। मैंने एक ही क्लिक किया तो वो कुछ कहना चाह रहे थे, करके ऐसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जब वो पुलिस और वो आगे खड़े हुए थे तो हम जा नहीं सकते थे। पुलिस वाले के अभी नहीं तुम जाओ और ये वो एक दो इसको पकड़ो, इसको कौन है, ये क्या है। तो फिर मैं भाग के मैं अंदर वहाँ उनका मेडिकल स्टोर था बड़ा सारा, मैं उधर वहाँ चले गया। फिर मैं वापस ऑफिस आया। ऑफिस आके मैंने जो तस्वीर बनी बाहर, फिर वो अखबार में जब तस्वीर सुबह पब्लिश हुई तकरीबन 3 बजे तक जो है ना अखबार कौमी अखबार छपता ही रहा। इतना छपा कि बस हमारा मालिक जो है ना वारे निहारे हो गए। उन्होंने मजबूरी में जाके जो है ना अपनी मशीनें रोके, कहने लगे भाई इससे ज़्यादा चलाएंगे तो मशीनें ख़राब हो जाएंगी,
हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, बंद। एक गोली उनकी शाहरग में लगी थी जिसकी वजह से उनका सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था और यही गोली बाद में उनके मरने की वजह भी बनी। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 9:20 पर अस्पताल पहुंचाया गया था। 1 घंटे बाद मुर्तजा की अहलिया गनवा और बेटी फातिमा बहुत ही मुश्किल से अस्पताल पहुंची क्योंकि पुलिस ने हॉस्पिटल जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया था। इधर मुर्तजा भुट्टो अस्पताल में 3 घंटे मौत से जंग लड़ते रहे। 11:45 पर मुर्तजा भुट्टो दम तोड़ गए और उनकी खबर को 12:25 पर डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर ये बात बहुत अजीब थी कि जो 2 पुलिस एहलकार गोलियां लगने से जख्मी हुए थे उनको आगा खान नजदीक हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि मुर्तजा को दूर के हॉस्पिटल मिडीज में ले जाया गया। मुर्तजा भुट्टो तो दुनिया से जा चुके थे लेकिन उनका राजदार अभी भी मौजूद था और ये राज अब बहुत ही अहमियत हासिल कर चुके थे। सोनारा याद है ना, पुलिस ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया लेकिन सोनारा ने अपना मुंह ना खोला, लेकिन मुर्तजा की मौत हर हरबे पर गालिब आ गई। ये तफ्तीश चल रही थी। फिर जब ये मुर्तज़ा वाला वाक़या हो गया तो उसके कोई घंटा 1.5 घंटे बाद ज़ीशान काज़मी फिर थाने आ गए। थाने आके फिर यहाँ पे उन्होंने पहले तो थाना लॉक करवाया कि सिविलियन सारे हटा दो और लॉक कर दो, बिल्कुल कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर उसके बाद ये आगे बाबर प्राइवेट रूम में था, बाबर को बुला लिया गया। SHO वाले कमरे में आके बैठ गए। रोज़नामचा मरर को बुलाया। फिर ज़ीशान ने वो रोज़नामचा खोला और उसमें 2 सफ़े फाड़ दिए, 2 या 3 सफ़े थे वो फाड़ दिए और उसको रोज़नामचा मरर से बोला कि ये एंट्रियाँ बाद में करना, इसमें एक एंट्री ऐड कर दो कि मैं इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी जो है बग़र्ज़ तफ्तीश जो है वो इस वक्त थाने में फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक मौजूद हूँ। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं गैर हाज़िर था इस दौरान। तो वो एंट्री कराई गई और बाकी एंट्रियाँ फिर उसके बाद वो की गई। अली सोनारा से जब पूछा तो वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। तो ज़ीशान ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये PTV लगाते हैं ना, इसको PTV दिखाओ ताकि पता चल जाए कि ये क्या हुआ। इसका वो दिखाया, इसको बताया कि भाई मुर्तज़ा तो मर गया है। तो उसने बोला कि वो तो मेरा बाप है, वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था कि वो मर चुका है। तो इस तरीके से वो फिर पुलिस वालों ने डिश सेट की। ये CNN जब लगा और CNN उसने देखा तो फिर अली सोनारा की कैफियत ही बदल गई। उसने फिर दोनों हाथ ऐसे V की शेप में उसने ऐसे उठाए और इतने पूरी ज़ोर से अपने सीने पे मारे। फिर वो धाड़े मार मार कर रोता रहा। फिर उसके बाद जब इसका रोना इसका कम हुआ तो इसने सर उठाया। फिर इसने ज़ीशान काज़मी से कहा कि साहब जब मेरा बाप मर गया तो मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पूछते जाओ बताता जाऊँगा। तो फिर तो ये कैफियत थी कि इनके शफ़ात धड़ाधड़ आ रहे थे और बीच बीच में ज़ीशान काज़मी जो है ना चीखें भी मारता था क्योंकि उसमें बाज़ ऐसी बातें आती थी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से मुताल्लिक थी। तो वो बोलते थे यार ये हज़फ करो, यार मेरी नौकरी इसका सवाल है, मेरे साथ क्यों बेड़ा गर्क करोगे, ये हज़फ कर दो। तो उसको बताया जाता था कि भाई ये हज़फ कर लेंगे, लिखने तो दो मुल्ज़िम जो बता रहे हैं। तो वो चीज़ें इस तरीके से होती रही हैं जो और रात तक ऐसा हुआ कि पूरा जो अली सोनारा ने पीपल्स पार्टी के अंदर जो रा का भारतीय खुफिया एजेंसी का जो कनेक्शन था, जो कनेक्टेड लोग थे और वो लोग जो कि इंडिया में ट्रेनिंग लेके आए थे, वो सारे लोगों के नाम वो उसने बता दिए हैं। आज भी पुलिस में ऐसे अफसरान हैं, ऐसे एहलकार हैं जो ज़ुल्फ़िकार के लिए काम करते थे और जिन्होंने इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग कैंपों में तरबियत हासिल की हुई है। वो लोग एक्साइज में भी हैं, वो लोग कस्टम में भी। सोनारा के मुंह से निकले अल्फाज सोने की तरह कीमती थे। मुर्तजा के वाकया को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि फिरोजाबाद के एक इलाके में एक बोरी बंद लाश बरामद हुई। जब उसको खोला गया तो उसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ज़ीशान काज़मी की लाश थी और इस वजह से सोनारा की इन्वेस्टिगेशन को भी हमेशा के लिए ब्रेक लग गई। मुर्तजा का वाकया एक ऐसा अनोखा वाकया था जिसकी 3 FIRs रजिस्टर की गई। एक उनकी बीवी गनवा भुट्टो की तरफ से, दूसरी SHO सियाल की तरफ से और तीसरी मुर्तजा के साथी नूर मोहम्मद की तरफ से। वाकया के बाद एक रोज सियाल घबराए हुए शोएब सडल के पास आए और कहने लगे सर अब वो नहीं छोड़ेंगे मुझे। और हुआ भी ऐसा ही। मुर्तजा वाकया के 1 हफ्ते बाद वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए और उनकी कनपट्टी पर उन्हीं की पिस्तौल की गोली का निशान था। ये खुदकुशी थी या फिर पुरअसरार कत्ल, लेकिन एक और आई विटनेस मारा गया। बेनजीर ने अपने भाई की कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की एक एक्स टीम को हायर किया। टीम पाकिस्तान तो पहुंची लेकिन तहकीकात न हो सकी क्योंकि टीम आने के सिर्फ 4 दिन बाद फारूक लगारी ने बेनजीर की हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया और इसमें बुनियाद बना लॉ एंड ऑर्डर की खराबी
और उनके भाई का कत्ल। हालांकि इस मामले में इन्वेस्टिगेटर्स ने सवाल उठाया कि क्राइम सीन को साफ क्यों कर दिया गया। 100 से ज्यादा गोलियां चली लेकिन किसी भी गोली का खौल बरामद नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई कि ये वाकया सरासर पुलिस की साजिश है और इस मौका पर एक और शूटर भी मौजूद था जिसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया। वो कौन था ये आप लोगों को बताने की जरूरत तो नहीं। मुर्तजा कत्ल केस की तहकीकात करने के लिए एक जुडिशियल कमीशन भी बना। जस्टिस नासिर असलम इसको हेड कर रहे थे। प्रॉपर सबूत ना होने की वजह से कमीशन ने आहिस्ता आहिस्ता करके हर पुलिस ऑफिसर को इस मुकदमे से बरी कर दिया और ये बात लिखी गई कि अगर कत्ल के ऑर्डर आए हैं तो बहुत ऊपर से आए हैं, मगर ऊपर था कौन ये तो सब जानते थे, लेकिन बात कभी सामने ना आई। जस्टिस नासिर जो कि अपने दबंग फैसलों की वजह से जाने जाते थे, वो भी इस मामले में नाकाम हो गए। फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा कि आसिफ अली जरदारी किसी हद तक इनके वालिद की मौत के जिम्मेदार हैं। Do you believe that Asif Zardari is involved in the killing of your father? Yes, Do you believe that Benazir Bhutto has a role to play? yes, unfortunately. जबकि गनवा भुट्टो के ख्याल में सिर्फ बेनजीर ही इस ऑपरेशन की इजाजत दे सकती थी। आसिफ अली जरदारी हर पेशी पर यही कहते रहे कि वो बेगुनाह है और जब वो सदर बने तो सिंध हाई कोर्ट ने इन्हें हर तरह के केस से बरी कर दिया और इसके बाद इस वाकया में शामिल तमाम पुलिस ऑफिसर को बहाल कर दिया गया और इनको प्रमोशंस भी दी गईं। ये इनाम इन लोगों को क्यों मिला, सोचने वाली बात है।